Right. Today is press conference of the APSU. In my left is General Secretary Matubui. In my right, it's Nabum Gandhi, Vice President Protocol. The today press conference is regarding 13 points demand of the APSU, along with the new issue which is going viral in the state of Arunachal Pradesh regarding the Kachari and Sonwal residing in Namsai and Changlang district, Arunachal Pradesh, as a scheduled tribe and sub-tribe, blind tribe in the national population census. तो इस चलते आज हमारा 2 पॉइंट है. And first and foremost, as you all know that कल हम लोग प्रेस रिलीज में दिया था कि regarding Kacharis and Sonowals. First and foremost, Arunachal is a tribal land. As per Bengal Frontier Regulations Act 1873, ये हमारा जो ट्राइबल लैंड है, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया. तो यहाँ पे जो हमारा सोनवाल कचारी लोग को यहाँ में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने का ये कोई बात नहीं है. APSU strongly condemn this move which is called by the मीटिंग जो कल जो मीटिंग जो रखा है, consultative meeting on this Monday on 13 July 2026 at Civil Secretariat. So it's clear-cut one to the state government, to concerned authority, that अगर ये meeting withdraw नहीं होता है, cancel नहीं होता है, APSU में compel to go for democratic movements. अगर ये meeting का order नहीं निकलता है, APSU will be stage protest at Secretariat. हम लोग सेक्रेटरीट में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा. और उस मीटिंग को अगर जबरदस्ती करवाता है, उस मीटिंग में लर्नेड चीफ सेक्रेटरी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि 400-500 चेयर और मेंशन रखिए आप लोग. हम लोग APSU टीम भी आ रहा है, हम लोग भी उस मीटिंग में बैठेगा और हमारा जनता और हमारा टीम सेक्रेटरीट का बाहर में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा. सेक्रेटरीट गेट लॉक होगा और इस चलते फ्रॉम रिलायबल सोर्स इज कम टू नो दैट पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन. तो ये जो कचारी जो आउटसाइड ऑफ द स्टेट नॉन APST को जो ST स्टेटस के लिए देने के लिए जो पॉलिटिक्स खेल रहा है, चाहे वो कोई भी ऑनरेबल हो, चाहे CM हो, DCM हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, ये जो पॉलिटिक्स खेलने वाला को अगर APSU को पता चलेगा, वी मे कंपेल टू गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर पर्सन. और हम लोग उस पर्टिकुलर ऑनरेबल्स को अगर पता चलेगा, हम लोग उसका रिजिग्नेशन भी डिमांड करेगा. दिस इज क्लियर कट वन एंड मैसेज टू दोस लीडर्स, डोंट प्ले विद द सेंटीमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हमारा जो इंडिजिनियस का सेंटीमेंट का कोई हर्ट नहीं करेगा. अगर जबरदस्ती बाहर आउटसाइडर को या ST स्टेटस का, PRC स्टेटस का देने के लिए शुरू करेगा, उस कंसर्न चाहे वो CM हो, चाहे वो DCM हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी ऑफिसर हो, IAS हो, वो APSU का खिलाफ है. APSU में declare anti-Arunachali to those particular persons. This is clear-cut message. And regarding the 13-point demand of the APSU, we had meeting in the Chief Minister office, and we had meeting with the Chief Secretary office. We received copy from the government of Arunachal Pradesh on 13-point demands. हम लोग को लेटर रिसीव हुआ. Number 1 point, abolition of 80-20 ratio and mandatory PRC APST certificate in the all competitive recruitment process. जो 80-20 का रेशियो अभी चल रहा है, तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट में था डिमांड में से. In this context, government of Arunachal Pradesh has constituted one high power committee under the chairmanship of Nyato Dukum, Honorable Minister Industry Skill Development, and Principal Secretary PWD, Secretary Law, Secretary Personnel, Secretary Sajata, Joint Secretary ARNT, and President APSU along with the representative has invited to be special invitee in the committee meeting. तो इसका हम लोग को रिपोर्ट मिला है. And we have इस कमिटी रिपोर्ट में we have also got power to examine the previous high power committee. तो आप सबको बताना चाहिए कि पिछले in year 2022 same issue
one high power committee was constituted under the chairmanship of Sri Taba Tadir, Honorable Minister Education, जो फॉर्मर मिनिस्टर है, उसका अंडरशिप में एक चेयरमैनशिप में एक फॉर्म कमिटी कंस्टिट्यूट किया था। उस कमिटी का जो रिपोर्ट है ऑलरेडी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी सबमिटेड किया गया है। तो उस रिपोर्ट को भी हम लोग को एग्जामाइन करने के लिए कमिटी को पावर दिया गया है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, APSU demand to the state government, especially to the APCS commissions and APSSB commission, that we demand to hold all the recruitment process till completion of finalization of this report. तो APSU का ये क्लियर कट डिमांड है, APCS commissions, APSSB commissions, जैसे कल एग्जामिनेशन होने जा रहा है APSSB, APCS का, TGT का, इस तरह का छोड़ के जो न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा है, सब चीज को होल्ड करने के लिए ये APSU का डिमांड है, क्लियर कट 1 पॉइंट डिमांड। जब तक ये हम लोग का जो कमिटी बनाया हाई पावर कमिटी का रिपोर्ट जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा, तो ये हम लोग APCS कमीशन और APSSB कमीशन को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा, न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। दिस इज डिमांड फ्रॉम द APSU। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द रेस्ट 12 पॉइंट डिमांड, परमानेंट एंड फाइनल रेजोल्यूशंस ऑफ चकमा एंड हाजुंग इश्यूज, ये एक दिन का, 2 महीना का, 1 महीना का ये इश्यूज नहीं है। इस चीज के लिए भी होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंडोर्स किया गया है। एंड स्टेपल वीजा, ये भी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ये भी होम और पॉलिटिकल को दिया गया है। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, इसके लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली को इंडोर्स क्लियर कट किया गया है। एंड डेडिकेटेड स्टडी ऑफ पैकेज फॉर इंडिजिनस यूथ एंड रेडिकल सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को दिया गया है। एंड चीफ मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप फॉर APSD PhD स्कॉलर्स के लिए ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्लियर कट इंडोर्स किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल CUT सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। एंड डिजिग्नेशन ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ग्राउंड इन ईटानगर, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव को दिया गया है। एंड वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, ये जो है ऑन 25 जून 2026। एंड मैंडेटरी ऑफ PRC एंड APSC सर्टिफिकेट फॉर नॉमिनेशन पंचायती राज इलेक्शन, ये पंचायती राज को दिया गया है। तो ये जो ऑर्डर है हमको गवर्नमेंट का तरफ से रिप्लाई किया है, और ये हम लोग को बताया गया है कि ए मिनट ऑफ मीटिंग was convened under the chairmanship of learned chief secretary on 25th June 2026 at 3:30 p.m. in the chief secretary conference hall, deliberate upon the 13-point memorandum submitted by the All Arunachal Pradesh Student Union APSU to Honorable Chief Minister. The memorandum was discussed in detail and each agenda point was scrutinized and assigned to concerned department for examination and necessary actions. तो ये 13 पॉइंट डिमांड का जो हम लोग को आज तक जो प्रोसेस को रिप्लाई दिया गया है, जो आप सब ने देखा होगा, कुछ हाल ही में ऑन 2 जून 2026 वी सबमिटेड representation to the state government. On 6 July 2026 again we have given 7 days ultimatum to the state government. तो इसका रिप्लाई में हम लोग को ये मिला है। एंड वी वाज कॉल्ड एज ए मीटिंग देयर एट चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इवन इन द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। तो वो मीटिंग कॉल करके ये हमको रिप्लाई दिया गया है। और आज आप सबका माध्यम से मैं इतना भी बताना चाहूँगा, SIR जो SIR जो चल रहा है, तो SIR का चलते टू लुक आफ्टर द SIR, तो इंटायर अरुणाचल में जो चल रहा है उसके लिए इन माय राइट श्री नाबम गांधी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जो बैठा है, इसको मैं चेयरमैन का तौर पे हम लोग टीम ने अपॉइंट कर रहा है। अलॉन्ग विद द सम कमिटी मेंबर्स आर देयर, वो आपको लेटर मिल जाएगा। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, मैं सभी को
डायरेक्शन देता हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद द वीपी प्रोटोकॉल इन रिगार्डिंग द SIR। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने आपका जो फर्स्ट फिर आपका सेकंड का मैं आता सेकंड तो आप ये 13 पॉइंट को पे लेके आए। 13 पॉइंट अब तक का आउटकम क्या है, आपके दिमाग में अब तक सरकार ने क्या काम किया है, अभी तक का आउटकम क्या है? मैं वही चीज को मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट में abolitions of 80-20 ratio and mandatory PRC and APST certificate in all competitive recruitment process, वो नंबर 1 पॉइंट में था। तो उस चलते सरकार ने कमेटी गठन किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ न्यातो दुकुम सर, वो है। एंड रेस एश्योरेंस देने का बाद में ऑन प्रोसेस में जो चल रहा है वो लेटर हम लोग को रिसीव किया है, जो मीटिंग माइनट्स तो 13 पॉइंट्स का ये है। तो उस मीटिंग माइनट का साथ में आज मैं यहाँ रिसीव करके बैठा हूँ। और जो 3 रेशियो की बात आता है, एफपीएफ का जो सरकार को 3 रेशियो को लेके सरकार 11 अगस्त का मेमोरेंडम पेश किया है। तो इस पे आपका क्या टिप्पणी देना चाहिए, क्योंकि वो जो उठाव उठा रहे हैं कहीं ना कहीं अरुणाचल की बेनिफिट के लिए, इसमें आप क्या कहते हैं? ऐड करना होगा इसके साथ में एक इशू का। आफ्ताब का तरफ से बोला गया कि जो ताराताजिन का जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी नया से एक रिपोर्ट बना रही है गवर्नमेंट का तरफ से, किस तरीके का आईवास है, नया रिपोर्ट बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले भी 1 दिन में लगा था, अभी भी 2 साल लग जाएगा। तो इसीलिए जो पुराना रिपोर्ट है उसको ही इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। तो आपसे का तरफ से इसका कैसे रेस्पॉन्स है? से जब तादक नालो बाई का जब बात करते हैं, इस लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ देयर इज सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी इन द अरुणाचल प्रदेश, तो कोई भी अपना अपना मुद्दा को बात कर सकता है, हाँ उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट इन कंटेक्स्ट ऑफ द 80-20 रेशियो, जब इसका बात करने से जो कमेटी 2022 का बात कर रहा है, इस कमेटी को भी एग्जामाइन करने के लिए, वो कमेटी का रिपोर्ट को एग्जामाइन करने के लिए ये कमेटी को पावर दिया गया है। इन सीरियल नंबर 4 अब यहाँ क्लियर कर लिखा है कि जो नया हाई पावर कमेटी का टू एग्जामाइन द रिकमेंडेशन ऑफ अर्लियर हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑन द मैटर, तो उसको भी स्टडी करने के लिए जो हम लोग का अभी जो कमेटी है उसमें बनाया गया। एंड इट्स नॉट आईवास, दिस कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन अ डिमांड ऑफ द APSU, एंड APSU is the apex students body of the state and legitimate organization of the state। और आज का तारीख पे we are socially sanctioned by the people of Arunachal Pradesh and students community, we are democratically elected by the students community of state। तो आज हमारा दिमाग में ये बना है, ये सिर्फ एक कागज नहीं रहेगा। this is assurance to the students community and people of Arunachal Pradesh, APSU is looking after the matter, और ये APSU जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेगा इसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा तब तक देयर शुड बी नो रिक्रूटमेंट, न्यू एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम APCS कमीशन, फ्रॉम APSSB कमीशन। ये APSU का क्लियर कट मैसेज है। 1 पॉइंट डिमांड टू द स्टेट गवर्नमेंट, और इसलिए ये APSU का क्लियर रिक्वेस्ट है APSSB कमीशन एंड APCS कमीशन, आप लोग नया एडवर्टाइजमेंट के लिए सोचना भी नहीं टिल कंप्लीशन ऑफ दिस रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है विद इन 2 मंथ दिया है, विद इन 2 मंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद इन 2 मंथ? 2 महीना का अंदर में रिपोर्ट लाना है, तो वो 2 महीना का अंदर रिपोर्ट कैसे लाना है, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ APSU, वो हम लोग करेंगे। पहले जो किया था 2 साल लगा, 4 साल, 5, 6 साल, दैट वाज द, वो समय हम APSU में भी नहीं था, दैट वाज फॉल ऑफ द कमिटी मेंबर्स। तो कमिटी उसको बात करना चाहिए था, उस समय क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्यों 1 साल लग रहा है, क्यों 2 साल लग रहा है। लेकिन APSU बोल रहा है ये 2 महीना का अंदर रिपोर्ट नहीं होगा, APSU विल स्टार्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। ये क्लियर मैसेज है। सो माय स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, APSU का जब बात करता है, यहाँ लीडर आना जाना चेंज होते रहते हैं, इट्स अबाउट द लीडर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो उसका बात है। आज APSU का प्रेसिडेंट मेजे ताकू है, जनरल सेक्रेटरी मातोबुई, अंडर आवर लीडरशिप
नया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, हम लोग का लीडरशिप में our stand is very clear in the issues of the state, for the interest of the students community, for the interest of the state as a whole. Our stand is very clear. हम लोग झुकेगा नहीं. Day 1 में भी बोला था, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला था, we will never bow down for the interest of the students community of state. हम लोग कभी झुकेगा नहीं, हमारा राइट के लिए, हमारा हक के लिए. जिस तरह अभी मैंने कचहरी का बात करके, जिस तरह वो एसटी का इश्यूज का बात करो, चाहे वो पीआरसी इश्यूज का, जो स्टेट का इंटरेस्ट में इश्यूज में आपसे कभी झुकेगा नहीं. दिस इज माय वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. जैसे कि आपने बताया कि जो झुकेगा नहीं, मध्य प्रदेश में इतना इशू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हर कोई अच्छा इशू आता है, और सरकार की तरफ से हमेशा स्टूडेंट्स भेजे आया है, स्टूडेंट्स देता है. क्या लगता है आपको एज ए एपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट कि आपसू का बात को सरकार जल्दी सुनेगा ना, स्टूडेंट्स दिया जाएगा, क्या लगता है जल्दी करना चाहिए? तो आपका वो जवाब को मैं देना चाहूँगा. जो आज तक आपसू हम लोग का टीम ने जो बोला, सरकार काम करके आए. चाहे वो अलेट ग्यामर पादंग का स्टैचू का बात करो, चाहे वो सीओटी का बात करो, है ना, वेरियस इश्यूज. जब 80-20 में भी कमेटी का जब बात किया, कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ, सी आपसू जो बात किया कर रहा है. उसके बाद में आगे देखिए, और जिस समय में हमारा बात नहीं होगा, हमारा काम को नहीं होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन को नजरअंदाज करेगा, तब आपसू का हरकत को आप देखिए. एक और लास्ट रहेगा जो आपने पहले बोला था, अभी भी बोलते गया है, जो सकना आजम इशू है, इसी का बारे में सेंट्रल में भी बात करेगा बोला था. इलेक्शन का पहले भी हमने काफी मीटिंग में से बोला था कि ये इशू को रिजल्ट सेंट्रल में भी जाएगा. और कल परसों भी कोई किसी ने बोला है कि ये सकना आजम इशू जो अभी भी है, एटीएम बैंक का तरफ, एटीएम मशीन का तरफ से काम हो रहा है, तो कितना आगे बढ़ा है ये, खास करके सकना आजम इशू में आपको कितना डर है? See, some peoples they trying to tarnish the image of the APSU. But for your kind information, when we talk about the Chakma and Hajong issue is not only in Arunachal Pradesh. This issue is there at Mizoram, Nagaland. This issue is there at Assam. This issue is there at Tripura. वहाँ में चकमा लोग जो है सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है. वहाँ में चकमा लोग ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर बन रहा है. बट इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे आर स्टिल नॉट इन पोजिशन. वाई? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द APSU. APSU ने सिंस लास्ट मेनी ईयर्स APSU is fighting for Chakma and Hajong. That's the reason today they are not citizen of Arunachal Pradesh. लोग इसको APSU का हमारा जो फॉर्मर लीडर्स है ब्लेम करता है. एटीएम मशीन का बात करता है. प्रूफ करके देखो ना, एटीएम मशीन का बात करता है. APSU का कारण से चकमा आज तक एक जॉब में नहीं है. लेकिन दूसरा स्टेट में देखो, दूसरा स्टेट में वो ऑफिसर्स बन के रखा है, सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है, पंचायती राज में बन के रखा है, एमएलए बन के रखा, मंत्री बन के रखा. दिस इज द स्टेटस. लोग इसलिए डोंट ट्राई टू टर्निश द इमेज ऑफ APSU. लीडर कोई गलती करता है, पर्टिकुलर बात करो. इफ मेजे ताकू, अगर हम APSU का प्रेसिडेंट न होके गलती करता है तो मेजे ताकू को गाली दो, APSU को नहीं. APSU द इंस्टीट्यूशन विच ऑलवेज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हमेशा फाइट करके है. जब आप आज 80-20 का बात करता है, आपको पता है 80-20 रेशो ये भी APSU ने लाया. एक समय में 80-20 नहीं था. 80-20 इज बिकॉज ऑफ द APSU. ये भी जानना है लोग. APSU गाली मत दो. मेजे ताकू गलती करता है तो मेजे को बोलो, मातो गलती करता है तो मातो को बोलो, गांधी गलती करता है तो गांधी को बोलो. XYZ कोई भी APSU का एग्जीक्यूटिव मेंबर गलती करता है, पर्टिकुलर बोलो, बट डोंट ब्लेम APSU. APSU is the one of the purified, institution which always protect the rights of the indigenous people of Arunachal Pradesh. Though it may be issue in the refugee, though it may be in the boundary, कोई भी इश्यूज हो APSU ही हमेशा प्रोटेक्शन दे के है. इसलिए APSU को हमेशा इज्जत देना. थैंक यू वेरी मच.